کرکٹ کی عالمی جنگ میں پاکستان آج اپنا اہم میچ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ ٹیم ہار جیت کے خوف سے بے نیاز ہو کر اچھی کرکٹ کھیلے۔ فخر کے ساتھ افتخار کو پہلے نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجنا چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گی نمائندہ CNN سونیا خانزادہ۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ شاہین اپنا ایک اہم میچ کھیلنے آج جا رہے ہیں انگلینڈ کے ساتھ، اور کیا شائقین کرکٹ کی سجیشنز ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ آج کیا لگتا ہے ٹیم میں کون آگے جائے گا تو بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان سے تو ہمیشہ سے امید رہی ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ پاکستان جیتے، اور اگر ہماری پہلے ٹاس کر کے بیٹنگ آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ 400 کا ٹارگٹ دینا چاہیے اور جلد سے جلد آؤٹ کرنا چاہیے ان کو۔ شاہین کی جیسے سوئنگ ہوتی ہے وہ آ نہیں رہی، تو شاہین سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے۔ اس وقت جو میچ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور بیٹنگ لیول پہ بہت ضرورت ہے کہ رنز کو بہت آگے تک لے کر جایا جائے، ٹارگٹ بہت زیادہ دیا جائے، تبھی ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ جی، ورلڈ کپ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل میں جانا ہو تو انگلینڈ کو بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ مائرہ اکرم سے۔ جی بالکل، بڑے میچ کا آج اہم اور فیصلہ کن مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ آج پاکستانی ٹیم جو ہے وہ 1:30 بجے تقریباً جو ہے وہ انگلینڈ ٹیم سے ٹکرانے جا رہی ہے، اور آج کا میچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم جو ہے وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کریں گے یا نہیں۔ لیکن شائقین کرکٹ اس پر کچھ مایوس بھی ہیں۔ شائقین کرکٹ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے کہ ہم 400-500 کا رنز دے سکتے ہیں اور ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جلدی ان کو آؤٹ کر سکیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ جو ہے نا، اب فخر زمان جو اوپننگ کا ہمیں ایشو آ رہا تھا، تو فخر زمان ہمارے لیے جو ہے نا وہ فارم میں ہے اور ہماری امید پہ انشاءاللہ وہ پورے اتریں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہے نا بیٹنگ آرڈر میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، جو پاور ہٹر ہے ان کو اوپر کھلائیں۔ جی، تو ان کو لگتا ہے کہ پہلے تو ہمیں ٹاس جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جب ہم ٹاس جیت جائیں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رنز پہ فوکس کرنا ہوگا، اور ہمیں تقریباً 475 سے لے کر 500 رنز تک جو ہے وہ بنانا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جیت کی طرف جائیں گے اور سیمی فائنل کی تھوڑی سی امید جو ہے وہ باقی رہے گی۔ جی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آج بازار اور ریسٹورنٹس کھلے رہیں گے، اسکول، کالجز اور تمام یونیورسٹیاں بند رہیں گی، دیگر تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے لاہور سے اپنے نمائندے احمد حسن سے۔ احمد حسن، بتائیے گا آج کیا دکانیں کھلنے دی جا رہی ہیں؟ کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہے۔ اسموگ کی شدت میں بھی واضح کمی آنے کے بعد رات کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا، جس کے بعد پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے بعد آج صبح سے ہی تمام اسکول، دفاتر اور دکانیں معمول کے مطابق کھلی ہیں۔ کاروباری سرگرمیوں کا عروج ہے۔ تاجر برادری کا بھی اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ نگران حکومت کا ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اسموگ کی شدت میں کمی آنے کے بعد اب یہ جواز پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا ایک اچھا اقدام تھا، تاہم اب جو ہے شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور خصوصی ریسٹورینٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ شام 6 بجے کے بعد اپنے کاروباری کام کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن SOPs کو فالو کرنا پڑے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل اور ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پوچھے اور اس سے متعلق جو ترقیاتی کام ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ CNN واصف محمود سے۔ جی واصف، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت راولپنڈی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے رات کو لیٹ ہولی فیملی ہاسپٹل کا دورہ کیا تھا اور 3 گھنٹے وہاں پر رہے، اور انہوں نے وہاں پہ ہاسپٹل میں مریضوں کو فراہم کرنے والی جو سہولیات ہیں ان کا جائزہ لیا، اور انہوں نے ایمرجنسی بلاک پر بھی لوگوں سے سہولیات کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ جہاں پر دورے کیے جا رہے ہیں وہاں پر لوگ بہتری آ رہی ہے اور لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور وزیر جو پنجاب ہیں وہ راولپنڈی میں آج بھی مختلف جگہوں کا دورہ کریں گے اور وہاں پر سہولیات کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر ہاسپٹل میں جو ری ویمپنگ کی کام چل رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ واصف محمود تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 3605 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए, जिसके बाद मजमूई तादाद 2,14,398 हो गई है। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत ने फैसला किया। अवाम ने फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा गैर मुल्की बाशिंदे वीज़े लेकर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान से रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हजारों अफगान की चमन और तुर्खम बॉर्डर से वतन वापसी जारी है। 10 नवंबर को 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 1175 मर्द, 848 खवातीन और 1582 बच्चे शामिल थे। अब तक कुल 2,14,398 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमती फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और हिंदुस्तानी सपोर्ट शामिल है। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफराद को निकाल कर सही कदम उठाया है। इनको ये इकदाम पहले करना चाहिए था, अफगानी को निकलने का। इससे पाकिस्तान की मजीद जो है ना माशियत बेहतर होगी। 40 साल जो है ना यहाँ पाकिस्तान में रहे और यहाँ ना अब जो है ना ये यहाँ अपने मुल्क में या दूसरे मुल्क में जो है ना जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे इन्होंने हमले करवाए। होना चाहिए, क्योंकि ये अब इतनी देर के तो यहाँ पे रह रहे हैं और फिर इतनी दहशतगर्दी हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाजिया कर रखा है कि गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में शहरियों से ताउन की अपील की है। शहरी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले किसी भी शख्स की हेल्पलाइन 1700 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किया था। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और मुखालिफ भी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाया, हमें पैगाम दिया कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, हम इलेक्शन करा देंगे। जनरल बाजवा की तरफ से पैगाम दिया गया कि वो न्यूट्रल हैं। नून लीग MQM इत्तेहाद हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है। इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। उसमें सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं है। जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मजीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। बढ़ेंगे, महंगाई की बात करेंगे। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महंगाई की मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दाल मसूर ₹1.90 फ़ी किलो महंगी हुई, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत में 57 पैसे का इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में ₹6 और अंडे फ़ी दर्जन ₹3 तक महंगे हुए हैं। गरीब आवाम की खुशियों पर पानी फिर गया। कुछ दिन महंगाई में कमी के बाद एक बार फिर ग्राफ ऊपर चला गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। सब्जी, चीनी, आटा और अंडे सभी कुछ महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.73% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 29.86% हो गई। एक हफ्ते में 20 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर ₹25, लहसुन ₹11 फ़ी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की कीमत में ₹6,
चीनी 57 पैसे और दाल मसूर ₹1.90 महंगी हुई। आटे के थैले की कीमत में ₹54 का इजाफा हो गया। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारा कोई सोचे, हुकूमत कुछ नहीं सोच रही। आम आदमी को जो है ना आगे इतनी मुश्किलात थी और दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। बिल में बहुत ज़्यादा आ रहा है और गैस भी कल महंगा कर दिया, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पे आप नजरसानी करें और आगे हम परेशान हैं, आप और हमें परेशानी में न डालें। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक साल के दौरान गैस की कीमत में 108%, आटा 81% और चीनी 57% महंगी हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ के सराय थल में 8वीं थल जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 3 खवातीन समेत 52 ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद फरीद से। शहजाद बताएगा क्या माहौल देख रहे हैं वहाँ पर आप? शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो जंगल में मंगल का समा है और अगर बात की जाए ये 8वीं थल जीप रैली की, तो इसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त लोगों का जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर रेसर्स यहाँ पर आए हुए हैं तो वहाँ पर शहरियों की भी और शायकीन की कसीर तादाद यहाँ पर आज जो है वो पहुँच रही है। इस वक्त स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जो है वो जारी हैं। 21 गाड़ियाँ जो है वो ट्रैक पर जा चुकी हैं, जबकि टोटल 52 गाड़ियाँ आज जाएंगी, जिसमें 3 खवातीन रेसर भी शामिल हैं। तो इस हवाले से मौसम भी बहुत अच्छा है, कैंप्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और लोगों की कसीर तादाद इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और इस किस्म के मुकाबले भी यहाँ पर रखे गए हैं लोगों की तवज्जो को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर फोक म्यूज़िक भी का भी तड़का यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर लोग जो है वो इसको इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आज भी लोगों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। और जहाँ पर अगर बात की जाए मकामी सतह पर भी 3 अजला में इस वक्त जो है मकामी तातील का ऐलान किया गया है आज, और क्योंकि कल इतवार है और फाइनल राउंड है तो लोगों के शायकीन को मजीद बढ़ाने के लिए खवातीन भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। खवातीन रेसर्स भी मौजूद हैं और शायकीन भी जो है यहाँ पर कसीर तादाद में बच्चे भी, बड़े भी और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि जो है इस बड़े इवेंट को, इस इलाके के बड़े इवेंट को जो है वो एंजॉय किया जा सके। 194 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिस पर आज जो है वो स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं और कल फाइनल राउंड में जो है वो फिर रेसर्स जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। और इसमें नामवर रेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें नादिर मगसी हैं, जैन महमूद हैं और इसके साथ साथ साहिबजादा सुल्तान है और दीगर जी शहजाद फरीद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की मुकामी आर्ट गैलरी में रवायती ट्रक आर्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्टिस्टों के बनाए खूबसूरत और दीदा ज़ेब ट्रक आर्ट पर मबनी फनपारे शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे हमूदुर रहमान। ट्रक आर्ट हमारी सकाफत और समाजी ढांचे का अहम जुज है। खूबसूरत डिज़ाइन, फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो नगार से ट्रकों को दीदा ज़ेब बनाया जाता है। आर्टिस्टों का कहना है ट्रक आर्ट का कोई मखसूस तरीका नहीं होता, बल्कि तमाम नक्शो नगार आर्टिस्ट के जहन की इख्तरा होते हैं। वो खुद ही सोचता है और जो डिज़ाइन उसके जहन में आता है वो उसे रंगों के जरिए ट्रक की बॉडी पर बिखेर देता है। हमें वैल्यू करने की ज़रूरत है अपनी आर्ट फॉर्म की, जो कि यहाँ के लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, हम उसे देख नहीं रहे। तो ये ट्रक आर्ट की एग्जीबिशन एक्चुअली उनको ट्रिब्यूट पेश करती है। ट्रक आर्ट को एक तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और तमाम लोगों ने, तमाम आर्टिस्ट ने अपने क्रिएटिव अंदाज में ट्रक आर्टिस्ट को सेलिब्रेट किया है। इस शो से हम ट्रक आर्ट को एक नए जाविये से और उसके हिडन पहलुओं को एक नई डायमेंशन से, डिफरेंट मटेरियल्स में और डिफरेंट तरह के इमेजेस में हम दिखाना चाह रहे हैं। नुमाइश के शुरका का कहना था कि ट्रक आर्ट भी दीगर फनून की तरह अहमियत का हामिल है। इसको फरोग देने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ हमूदुर रहमान, GNN लाहौर। और नाजरीन, मुल्क की तारीख में पहली बार ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से कराची में हिजड़ा फेस्टिवल मनाया गया। शुरका का कहना था कि इस फेस्टिवल का मकसद दुनिया को अपने वजूद का एहसास दिलाना है। तफसीलात रिपोर्ट करेंगी शारिका कमाल। अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाती ख्वाजा सिरा कम्युनिटी भी मैदान में आ गई। तारीख में पहली बार कराची में हिजरा फेस्टिवल मनाया गया। प्रेस क्लब चौरंगी से भग्गियों में सवार ख्वाजा सिरा की बड़ी तादाद रैली की सूरत में ढोल की थाप पर रक्स करते हुए आर्ट्स काउंसिल पहुंचे और वहां मुनक्किदा प्रोग्राम में लाल शहबाज कलंदर से अकीदत का इजहार करते हुए धमाल डाली। आर्ट्स काउंसिल कराची में मुख्तलिफ थिएटर्स और टैब्लोस पेश करके ख्वाजा सिराओं की मुआशरे में अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर ख्वाजा सिराओं ने कहा कि फेस्टिवल का मकसद है कि मुआशरा हमारी शनाख्त को कबूल
کرے۔ ہجرا فیسٹیول کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم کتنی یونیفائڈ موومنٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ خواجہ سرا کمیونٹی، ہجڑا افراد، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ معاشرے کے اسی طریقے سے نارمل انسان ہے جس طریقے سے آپ مرد اور خواتین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آرٹس کونسل فیسٹیول میں خواجہ سراؤں کی جانب سے مختلف اشیاء کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ پروگرام کے آخر میں شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ کیمرہ مین فیصل نذیر کے ساتھ شارقہ کمال، GNN کراچی۔